Good morning, students. Hope you all are safe at your home. So, today again we will do one activity, and in this activity we will learn about the different types of fibers. We have studied in our chapter also, Housing and Clothing chapter. So let's start with the activity. So activity is to know about different types of fibers. Different types of fibers जो होते हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ फाइबर. फाइबर से हम क्या समझते हैं, क्या होते हैं फाइबर्स. फाइबर्स आर लॉन्ग एंड वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. फाइबर्स बहुत बड़े और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर यूज टू मेक फैब्रिक, और इनसे फैब्रिक बनाया जाता है. कोई भी फैब्रिक होता है जिससे आपके क्लोथ्स बनते हैं, साड़ी बनती है, शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, these all are made from the fibers. Now these fibers are of two types. You can see here in this diagram the fiber is divided into two main types. First is natural fiber and other one is synthetic fiber. And natural fiber is further divided into two types, that is the plant fibers and the animal fibers. Now we will study these fibers, natural and synthetic fibers, one by one in detail. So first is the natural fibers. So as the name suggests, the fibers that are obtained from the nature or from the natural sources, that is from the plants and animals. जो fibers plants और animals से मिलते हैं वो natural fibers हैं. Example, cotton, jute, wool and silk. Cotton और jute are the plant fibers and wool and silk are the animal fibers. Now we will study about the plant fibers. Natural fibers अभी हमने देखा था ना यहाँ पर कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी. So first we will study plant fibers. So cotton is one of the plant fiber, and from where cotton is obtained? Cotton is obtained from the cotton plants. Cotton plant से obtain किया जाता है and it is used to make cotton clothes such as shirts, साड़ी, trousers etc. बहुत सारे क्लोथ्स बनाए जाते हैं कॉटन से, एंड कॉटन इज़ दी मोस्ट सूटेड फॉर दी समर सीज़न. समर सीज़न में कॉटन बहुत सूट करता है. क्यों सूट करता है? बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब दी स्वेट को एब्जॉर्ब करता है एंड इट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट फ्रॉम द बॉडी. हमारी बॉडी में से जो बॉडी हीट है वो बाहर निकालने में हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है. सो for this reason cotton is very suited for the summer season. Summer season में cotton clothes पहनना suggest किया जाता है. Now you can see this is the shirt, trouser and sari which is made from the cotton fabric. Now coming to the next fiber, which is the jute fiber. Jute fibers again are obtained from the plants. This is also the example of plant fiber. तो ये jute plant से मिलता है jute का fiber, and it is used to make clothes and other products such as mat, bag etc. देखा होगा आप लोगों ने जूट की जो मैट्स हैं, डोर मैट्स होती हैं, जूट की इसमें यूज़ होता है जूट फाइबर, और जूट के जो बैग्स होते हैं उसको बनाने के लिए जूट फाइबर का यूज़ किया जाता है. The third type of plant fiber is rubber. We get rubber from the rubber plant. रबर हमें रबर प्लांट से मिलती है, और रबर के भी आपने देखा होगा इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मैट्स. मैट्स होते हैं रबर के, शूज़ होते हैं रबर के, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो रबर जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है वो रबर प्लांट से ऑब्टेन रबर फाइबर से बनाया जाता है. So this is all about the plant fibers. Now let's move to the animal fibers. Animal fibers are the fibers that are obtained from the animals. जो animals से मिलते हैं वो animal fibers हैं. First example is wool. wool कहाँ से मिलती है? We get wool from the sheep. sheep से wool मिलती है and it is used to make woolen clothes such as sweaters, socks, coats etc. वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए वुल का यूज़ किया जाता है. स्वेटर्स हो गए, कोट्स हो गए, सॉक्स हो गए, ये सारे वुलन थिंग्स जो हैं हम विंटर्स में जो वियर करते हैं.
एंड वाई वुलन क्लोथ्स आर वॉर्न इन विंटर, विंटर में वुलन क्लोथ्स हमें क्यों पहनने चाहिए? बिकॉज वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. इट डू नॉट अलाउ हीट टू एस्केप आउट ऑफ द बॉडी. जैसे कॉटन क्लोथ्स में से हमारी बॉडी में, कॉटन क्लोथ्स हेल्प कर रहे थे हमारी बॉडी में से हीट निकालने में, वुलन क्लोथ्स बॉडी हीट को बॉडी में ही रिटेन करने में हेल्प करते हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकालते, जिस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहता है ड्यूरिंग विंटर्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल फाइबर इज सिल्क. सिल्क आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा. सिल्क का जो फाइबर है वेरी शाइनी मटेरियल होता है एंड एक्सपेंसिव भी होता है. एंड सिल्क थ्रेड हमें कहाँ से मिलता है? कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म के कोकून से सिल्क का थ्रेड ऑब्टेन किया जाता है एंड दे आर यूज टू मेक साड़ीज़, ड्रेस मटेरियल एक्सेट्रा. सिल्क की क्या होती है? साड़ी होती है एंड डिफरेंट ड्रेस मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क. और सिल्क बहुत ही लस्ट्रस होता है. लस्ट्रस मीन्स शाइनी मटेरियल होता है. नाउ नेक्स्ट मूव टू दी सिंथेटिक फाइबर्स. जो लास्ट टाइप के फाइबर्स, अभी तक हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा. नेचुरल फाइबर्स में वी हैव स्टडीड 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. Now we will study about synthetic fibers. These are the fibers made by men in factories and they are also called man-made fibers. Synthetic fibers को man-made fibers भी कहते हैं क्योंकि ये artificial fibers हैं जो men बनाते हैं factories में with the use of chemicals. अलग अलग chemicals के use से synthetic fibers बनाए जाते हैं. एग्जाम्पल हो गए synthetic fibers के नाइलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा. Synthetic fibers are used to make clothes, raincoats, acrylic curtains, nylon ropes, etc. बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बनाई जाती हैं एंड सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. क्या एडवांटेज होते हैं बेटा? सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो एक तो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो स्विम सूट्स होते हैं, स्विमिंग ड्रेस होती है, इट इज़ मेड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए. सिंथेटिक फाइबर के जो कलर्स हैं वो फेड नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स आपने देखा बहुत जल्दी उनके कलर फेड हो जाते हैं, स्पेशली कॉटन क्लोथ्स के. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे भी हैं और एक तरह से उनके डिसएडवांटेजेस भी हैं. एक और एडवांटेज सिंथेटिक फाइबर्स का कि ये बहुत लास्ट लॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होता है तो काफ़ी दिनों तक चलता है, बल्कि कॉटन क्लोथ्स या नेचुरल फाइबर से बने जो क्लोथ्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज़ कि ये बिल्कुल एयर को पास नहीं करते बॉडी में, तो जिससे हमारी बॉडी में बिल्कुल भी एयर नहीं पहुंचती है अगर हम सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं. एंड दे कैचेस फायर वेरी इजीली. सिंथेटिक क्लोथ्स फायर बहुत जल्दी कैच करते हैं, तो कोई भी फायर का काम करते टाइम सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. सो आई होप everything is clear about this activity about the fibers. Now as you can see here the pictures of different fibers, you have to paste the pictures or you can ड्रॉ द पिक्चर्स ऑल्सो. कॉटन जो फैब्रिक्स हैं आपके, कॉटन फाइबर्स की पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, जूट फैब्रिक की पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, रबर फैब्रिक की, ये सारी पिक्चर्स आपको पेस्ट करनी है. एंड इफ़ पिक्चर्स आर नॉट अवेलेबल देन यू कैन ड्रॉ इट बाय योर ओन ऑल्सो. So I hope the activity is clear to you. So this is all for today. Thank you and have a very good day.